students, today you are about to understand the structure of writing an essay. The first type of writing is discuss both views and give your opinion. Here the question is, some people believe that government should spend its resources to protect wildlife. Others say these should be spent on development. Discuss both the views and give your opinion. Here the main focus is on both views. We just have to keep in mind how many views are given over here. View 1, a team favors that government's resources. What is the keyword? Government का पैसा. जो resources है government का पैसा, उसके जितने भी साधन हैं should spend. Government को किस पे खर्च करना है? किस पे? Some says to protect wildlife. Wildlife means nature. A team says, there are two teams. One team says it should be spent to protect. किसको? Wildlife. दूसरी टीम कहती है कि नहीं, इसको किस पे spend करना चाहिए? Development पे. So we have two teams, two different opinions. तो फॉर दिस टाइप ऑफ एसे जहाँ पे हमें डिस्कस बोथ एंड ओपिनियन भी पूछा है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा. देयर वी आर सपोज टू फॉलो 4 BP स्ट्रक्चर. फाइन. नंबर 1, always and always we will go for introduction. That will be a 55. See, sorry, this essay will be of around 250 to 300 words तक हम जा सकते हैं. Minimum 250 will be accepted. Fine. If you write by 280, that will perfectly be fine. Introduction, we are supposed to write it between 35 to 55, no more than that. Otherwise, you will have to get your marks deducted. Then we will go for a BP1. BP means body paragraph. इसका जो word limit होगा, that will be around 90 to 100. Then we will go for BP2. BP2 will be of similar length, 90 to 100, and then conclusion. Only 4 paragraphs will be there. Before paraphrasing, before writing the introduction, we should be familiar with some synonyms. Synonyms of the words like government. The word over here, it is mentioned government. What are other ways to say government? Legislatives, higher authorities, people in power, statutory bodies and states. Number 2, what is the second word? Resources. Resources means sadhan, paisa. So what we are writing here? Resources, treasure, funds, money and capital. We can say next word over here is spend. Spend means खर्चा करना. कहाँ पे खर्चा? खर्चा करना means dole out, allocate, disperse और distribute. इस तरह से पैसे का बंटवारा, खर्चा होना चाहिए इन चीज़ों पे. अगला वर्ड है to protect. Protect को हम लिख सकते हैं save, shield. ठीक है. Next is wildlife. For wildlife we are having number of synonyms. That is flora and fauna. Flora and fauna means nature and animals, everything. Flesh and foliage, flesh for animals, foliage for planting. Natural habitat includes everything. Ecosystem. These are the synonyms to be written first of all for this keyword. Now we will proceed with how to write down the introduction, how to paraphrase, what steps are to be followed for the same. How we are going to proceed to write an opinion or an introduction by paraphrasing, as now we are already familiar with the synonyms. This is a debatable issue. ये एक controversial issue है जिसमें 2 opinion हैं. They have not come to any conclusion. तो हम इसको लेके कैसे लिखेंगे? Please have a look. Opinions may differ. कि हाँ, opinions अलग अलग हो सकते हैं. किस पे? Whether. Whether means if. क्या the government's
द गवर्नमेंट, ये पोस्ट ऑफिस लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है, सरकार का, ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स खजाना, शुड बी एलोकेटेड। अब हमारे पास क्वेश्चन में था गवर्नमेंट शुड एलोकेट, हमने इसका सेंटेंस चेंज कर दिया, ट्रेजर शुड बी एलोकेटेड, किस पे एलोकेटेड, टू प्रिवेंट, सेव, शील्ड, जो भी सकते हो, वाइल्ड लाइफ, हमने सिनोनिम्स करे थे नेचर के, वाइल्ड लाइफ, और दूसरी कौन सी चीज़ को बचाने की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट को, और ऑन प्रॉस्पेरिटी, दैट्स ऑल। यहाँ तक हमारा पैराफ्रेज हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। एक और तरीका है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, सिंपली शुरू करेंगे, क्या, इफ सरकार का खजाना, गवर्नमेंट्स ट्रेजर शुड बी एलोकेटेड टू सेव नेचर और ऑन प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन इज ए डिबेटेबल इशू। ये एक डिबेटेबल मतलब अभी इस पर बहस हो रही है, किसी कंक्लूजन पे नहीं लिखने, उसके सिनोनिम्स हैं मूट इशू, कंट्रोवर्शियल इशू और अ बर्निंग क्वेश्चन। यहाँ तक लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग, स्टेप 1 ऑफ राइटिंग इंट्रो, लाइक इसको हम बोलते हैं बार बार पैराफ्रेज। इसमें हमने क्या किया है, हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया है, हमने उसके मीनिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जो क्वेश्चन ने लिखा है उसी को वर्ड्स को चेंज करके इलैबोरेट कर दिया है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है हमारा ओपिनियन, जो कि इन्होंने हमसे पूछा है, और हमारा थीसिस। अब इसमें ओपिनियन कैसे जनरेट होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स। अब अगर आपको लगता है कि नेचर पे स्पेंड करना है या फिर प्रॉस्पेरिटी पे, या ये दो नोशन है, अगर आप एक के साथ जाते हो, नेचर के साथ जाते हो तो फॉर्मूला जो पहले लिखा है, अगर आप प्रॉस्पेरिटी के साथ जाते हो तो लेटर लिखोगे, अगर दोनों में से एक के साथ जाते हो। ये डिसीजन जो ओपिनियन है वो आपके पॉइंट्स के बिहाफ पे बनेगा, प्लीज कीप दिस इन माइंड। आई सपोर्ट द फॉर्मल और द लेटर परस्पेक्टिव एंड, ये हो गया यहाँ तक हमारा ओपिनियन। उसके बाद एंड, जो दिस ऐसे है, यहाँ से हमारा थीसिस स्टेटमेंट शुरू होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी वैल्यू कैसे है। दिस ऐसे शैल शेड लाइट ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स, दोनों ही एस्पेक्ट्स पे, कहाँ, इन अपकमिंग पैराग्राफ्स और इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स। इस तरह से थीसिस लिख सकते हैं। सेकेंड, ओपिनियन एंड थीसिस, जब हम एक बैलेंस की उम्मीद करते हैं कि नहीं, नेचर भी इम्पॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट भी, तो उसमें हम लिखेंगे आई बिलीव एंड सपोर्ट। किसको सपोर्ट करते हो, ये यहाँ पर ओपिनियन है, दैट अ बैलेंस वुड वर्क वंडर्स, बैलेंस बहुत अच्छा काम करेगा। एंड ये फिर से थीसिस आ गया, सेम, दिस हैज टू शेड लाइट ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स अहेड। फाइन, इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने पैराफ्रेजिंग के लिए शुड मोडाइल का जो एक्टिव सेंटेंस था उसको पैसिव में चेंज किया। वी हैव यूज्ड सिनोनिम्स, हमने दो तरह से इसका ओपिनियन लिखने की बात देखी है, दो तरह से। एक में हमने या तो फॉर्मल या लेटर, अगर एक के साथ जाना है, थीसिस यही रहेगा जिसके साथ मर्जी जाओ, या फिर बैलेंस के साथ जाएंगे, थीसिस विल बी द सेम। Hey guys, if you like this video, don't forget to like, comment and subscribe my channel, that is as easy with Priya, and don't forget to press the bell icon as well, and to stay tuned for the latest coming videos, and enjoy learning English and be fluent and fulfill your dreams. Thank you.